اب آئیے جعلی اور قابل اعتماد حدیث کی ریسرچ کا طریقہ کیا کریں. اب آپ کے ظاہر ہے یہ آئے گا نا، آپ حل کیا کریں. اس کے لیے پہلے تو مختصراً عرض کرتا ہوں، اگلے لیکچر میں آپ سے تفصیل سے اس کا میتھڈ شیئر کروں گا. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک درایت اور دوسری ورایت. درایت کیا ہے؟ متن کا مطلب کہ حدیث میں جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن مجید، سنت کا مطلب وہی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی پوری امت کو سکھایا اور وہاں سے آج تک پوری امت اسی پہ عمل کر رہی ہے. تو یہ چیز. اور تیسری چیز ہے آپ کی لاجک، عقل کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن، سنت یا عقل کے خلاف ہے تو پھر وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا. اچھا، حدیث قرآن اور دیگر احادیث سے مطابقت رکھتی. مطابقت کا مطلب کہ میچ آپ کر کے دیکھ لیں، میچ آپ خود کر سکتے ہیں اس وقت. یعنی حدیث کی بات جس میں آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن فیل ہو، آپ قرآن مجید میں بھی آپ وہی آپ دیکھ لیجئے کہ شروع سے آخر تک پڑھ لیں، کہیں پہ آپ کو ملے. اور آج کل تو آپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ آپ کو حدیث کا آپ کو کنفیوژن، آپ کہیں کہ سر ذرا پلیز یہ عربی میں بتائیں کہاں پہ ہے. عربی میں جہاں ملی تو اس کے اندر کوئی کی ورڈ آپ کو مل جائے گا، اسی کی ورڈ سے آپ قرآن مجید میں سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ حدیث کیا قرآن کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کیا یہ حدیث معقول بھی ہے کہ نہیں. اچھا، یہاں عقل ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک کامن لاجک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ تمام انسان اس کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ تمام انسان سمجھتے ہیں کہ جناب کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ چوری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ہم نے قتل نہیں کرنا کسی کو. اس میں تو پوری انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو یہ کامن عقل کی بات ہے. اس کے خلاف کوئی الٹی بات آپ کو حدیث میں ملے تو سمجھ نہیں ہے. اچھا، ایک دوسری عقل اور ہوتی ہے کہ کوئی فلسفہ کے جو ایک اپنی تھیوری سائنس کی، اور وہ بھی تھیوری ہوتی ہے، کوئی وہ بالکل کوئی ایک حقیقت نہیں ہوتی وہ، تو اس میں اس کو آپ عقل نہ کہیں، وہ لاجیکل چیز نہیں ہے. ابھی تو بس وہ ایک اس پہ ریسرچ چل رہی ہے، ابھی تو وہ بات ہے. لیکن جو ایک چیز بالکل ہے کہ جیسے یہ لاجیکل، آپ یہ دیکھیے کہ جناب سورج روشن ہے دن میں اور رات میں چاند. اچھا، چاند کسی دن آپ کو نظر آتا ہے کسی دن نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہوگا کسی انسان میں؟ تو بس اس نوعیت کی کوئی لاجیکل چیز میں حدیث کے خلاف کوئی بات ہے تو سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ یہ واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قتل حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا کسی کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے خلاف. اچھا، قرآن نے یہ اجازت دی ہے قتل کی، وہ بھی حکومت کو صرف دی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اب قتل کر سکتی ہے عدالت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح کہ کوئی دہشت گردی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، وہ آپ پڑھ چکے ہیں علم الفقہ کی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی اجازت دے دی ہے حکومت کو کہ جناب یہ جو کوئی بھی دہشت گردی کریں تو ان کے لیے پھر سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کو برے طریقے سے قتل کریں. تو پھر انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا ہے. تو یہ ہے، یہ دیکھیں میچ کر رہی ہے بات، لیکن اس کے الٹ نہیں ہو سکتا. اچھا، آگے چلیے. ایک پہلو ہے درایت اور دوسری ہے ورایت، یعنی سند. سند کیا ہے کہ چین آف نیریٹرز، جن لوگوں کے ذریعے سے اب تک وہ حدیث پہنچی ہے تو وہ بندے کیا ریلائبل ہے. کتاب سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان کے نام ہے یا کچھ غائب ہے. اچھا، آج آپ کو اگر کوئی مولوی صاحب بتا رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا سمپل ہے، آپ پوچھ لیں سر آپ یہ فرمائیں، یا جناب کہہ لیں انہیں جناب یہ فرمائیں کہ یہ کس بک میں ہے، وہ بک آپ کو بتا دیں گے. وہ بک آپ دیکھیں گے تو اس بک کا کہ جو صاحب جنہوں نے یہ بک لکھی ہے وہ بندے کیا ریلائبل ہے، اور انہوں نے
उस हदीस को किस किस बंदे के नाम के सोर्सेज से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई है, तो जनाब वो बंदे क्या रिलायबल हैं कि नहीं है। मसलन इसके लिए आप ये पूछ सकते हैं क्या ये रावी काबिल एतमाद है कि नहीं, मफाद परस्त है कि नहीं, या मौलवी साहब से पूछेंगे उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन अब उनसे इतना ही पूछ लें कि सर ये किस बुक में है, तो वो बुक में जाके आप देख ले और उसमें वो बंदों के पूरे नाम आपको मिल जाएंगे। क्या ये रावी अपने उस्ताद से हदीस ले सकता है कि नहीं ले सकता, क्या पॉसिबल भी है। यानी अगर एक ये कहे रावी से मुराद वो शख्स के जो हदीस बयान कर रहा है कि वो कह रहा है मैंने फुला उस्ताद साहब से सुना है, तो वो जो उनके उस्ताद हैं क्या उनसे मिल भी सके कि नहीं। तो पता चला कि जनाब फॉर एग्जाम्पल कि ये साहब जो इरशाद फरमा रहे हैं स्टूडेंट, वो पैदा हुए हैं 200 हिजरी में और उन्होंने सुना है अपने उस्ताद से, और जबकि उनके उस्ताद साहब 190 हिजरी में फौत हो चुके थे। तो सोच सकते हैं आप कि क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों मिल सकते हैं कभी। ये मैं अभी मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, अभी आगे जाकर डिटेल से हम इसकी मजीद क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या एक रावी हदीस को सुनकर महफूज भी रखता है और ठीक ठीक तरीके से बयान भी कर सकता है कि नहीं, कि रावी का हाफजा कैसा है, यानी क्या याद भी उनको रहती है या मेमोरी कहीं उनकी लॉस्ट हो गई थी किसी जमाने में, बुढ़ापा कैसा गुजरा है इनका, और क्या एक वो बिल्कुल सठिया गए थे कि नहीं, ये हालत तो नहीं थी इनकी बुजुर्ग की। आप कहेंगे जी मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं आगे तफसील से शेयर करूंगा कैसे करेंगे। क्या एक रावी किसी खास सियासी पार्टी या मजहबी फिरके से ताल्लुक रखता और इसके प्रोपेगेंडा के करने वाला एजेंट था कि नहीं था। अगर एजेंट था तो भाई फिर रिलायबल नहीं हुआ बंदा, और नहीं तो फिर ठीक है। अब एग्जाम्पल एक हदीस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये एक हदीस है सुनन अबी दाऊद और इसके स्कॉलर हैं अबू दाऊद साहब। वो बताते हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने मुसद्दद से सुना। मुसद्दद साहब ने अबू बकर बिन शीबा से सुना। ये देखे रेड कलर में आ रहा है। अच्छा, अब अबू बकर बिन शीबा ने किससे सुना, वो बोल के ये दोनों, ये और मुसद्दद दोनों बता रहे हैं कि हमने याया से सुना। अब याया साहब ने उबैदुल्लाह बिन अलखनुस से सुना। अच्छा, उबैदुल्लाह साहब ने किससे सुना है, वलीद बिन अब्दुल्ला बिन अबी मुगीस, इनसे सुना। अच्छा, वलीद साहब ने किससे सुना है, यूसुफ बिन महक से सुना है। और यूसुफ साहब बता रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा, ये साहबी हैं, इनसे सुना। तो अब फिर अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। अब देखें ये सनद है, यानी ये देखें कि ये वही विरायत है कि चेन ऑफ नैरेटर, सनद, इसको सनद कह ले, ये सिंपल आपको क्लियर रहेगी कि चेन ऑफ नैरेटर्स ये बंदे। तो इन बंदों को अबू दाऊद साहब से लेके आप यूसुफ साहब तक जितने बंदे उन सबको आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे मैं आगे अर्ज करता हूँ इनको। अच्छा, मतन क्या है। मतन वो बात है कि जो बात है वो क्या कुरान सुन्नत और अकल के मुताबिक है कि नहीं है, ये मतन है। अब मतन ये है कि वो बात क्या है। अब अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सुनता था लिख लेता था ताकि इसे याद कर सकूं। तो क्रैश के बाद लोगों ने उनको मुझे इससे कहा कि भाई आप क्या हर चीज सुनकर लिख लेते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है और कभी गुस्से और कभी खुशी में बात करते हैं। तो अब वो अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं मैंने लिखना छोड़ा तो फिर इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आपने अपनी उंगली से अपने दहने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि भी लिख लिया करें इसकी किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है कि यहाँ से सवाए हक के और कुछ नहीं निकलता। और ये देखिए कि ये एक बड़ा क्लियर, आप कुरान मजीद में भी ये वाज़ेह है कि नबी की जो बात है इसमें अल्लाह ताला गलती से इनको बचा देते हैं। गलती अगर हो भी जाए, ज़ाहिर इंसान है, लेकिन इनको अल्लाह ताला फौरन मैसेज से आ जाता है और उसको अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकली कुरान मजीद में कर भी दिया। ये जैसे हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पूरा कुरान मजीद पढ़ के मक्का मुकरमा के लीडर्स को पढ़ा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, वो भी सुन रहे थे। तो उस वक्त एक सहाबी नाबीना थे, वो तशरीफ लाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं किया, बस उनकी तरफ नहीं देखा और ज़हन में बस इतना आया कि जरा मैं फोकस इसकी कर लूँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरी बात कर दी कि भी आप ना करें, बल्कि इन लीडर्स को आप छोड़ दें, ये हिदायत भी नहीं आएंगे, वो हिदायत में आने वाले हैं कि जो मुखलिस, चाहे वो नबीना है, लेकिन आप उन पे फोकस करें। तो देखिए इतनी फोकस करने की बात भी कुरान में अल्लाह ताला ने कर दी। तो ये देखिए कि इससे आप ये देखिए कि ये क्या मतन जो है कुरान से मैच कर रहा है, क्या ख्याल है आपका? आप खुद सोचें, मैं तो कहूँगा कि मैच करता है। अच्छा, अब रही बंदे कि अबू दाऊद साहब से लेके और यूसुफ बिन महक तक के ये जो बंदे हैं, कितने बंदे हैं? यानी ये 6 आदमी। इन 6 बंदों को चेक करना है आपने कि जनाब बंदे रिलायबल हैं क्यों नहीं। सवाल सिंपल ये है, लेकिन कैसे वो मैंने जैसे सवाल 4 अर्ज किए, अभी और अर्ज करूंगा आपसे। तो अब जरा देखिए अहादीस की जांच पड़ताल। अब मतन की तो मैंने मुख्तसरन बात कर दी थी, इसको अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन इस वक्त हम सनद की बात करते हैं, यानी चेन ऑफ नैरेटर्स की रिसर्च कैसे करें। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से शेयर करता हूँ आपसे कि ये पूरी सनद मुकम्मल भी है कि नहीं, ये पहले देखें। अब देखें कि पहले साहब जिन्होंने बुक लिखी है तरमजी साहब ने। अब देखें तरमजी साहब 279 हिजरी में इंतकाल हुआ था। अब उन्होंने किसी मिस्टर ए से सुना, वो 240 हिजरी में फौत हुए। वो कह रहे हैं मैंने बी से सुना है, मिस्टर बी जो है वो 200 हिजरी में फौत हुए थे। और बी बताते मैंने डी से सुना है, और जो मिस्टर डी है वो 125 हिजरी में फौत हुए। अब मिस्टर डी बताते हैं कि मैंने ई से सुना है, और मिस्टर ई 100 हिजरी में फौत हुए थे। और ई बताते हैं मैंने मिस्टर एफ से सुना है, जो 70 हिजरी में फौत हुए। और मिस्टर एफ बताते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 58 हिजरी में फौत हुए। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैंने इसलिए नाम ABCD इस तरह करके किया। अच्छा, अब इस पे जरा आपको ज़हन में रेड कलर से आप जरा देखिए, ये मिस्टर बी बता रहे हैं मैंने डी से सुना है। ये कौन सा आप थे, कोई रिलायबल थे कि नहीं? तो इसके लिए आपके ज़हन में ये जो रेड मैंने जानबूझ के इसलिए किया है, क्या लॉजिकल है कि मिस्टर डी फौत हुए 125 हिजरी में और मिस्टर बी 200 हिजरी में फौत हुए। इसका मतलब है अपनी फौत होने से पहले 75 ईयर्स अगो, उस वक्त तो मिस्टर बी जो है अगर पैदा हो चुके हुए तो बहुत छोटे से बच्चे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मिस्टर बी की अगर उम्र बड़ी लंबी पाई है, 100 साल से ज्यादा है, तो तब वो जवान हो गए जब उन्होंने मिस्टर डी से सुनी थी। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आनी चाहिए ना यहाँ, ये आ गई आप पे। अच्छा, आप आगे चलिए। रावियों पर जरा तादील होती है। अब ये जरा तादील क्या है कि रिलायबल है कि अनरिलायबल है। चले हम किसी के शख्स पे कोई हम वो नहीं करते, बस ये कहते हैं कि बंदे पे हम यकीन कर सकते हैं कि नहीं करें। सवाल ये है, तो मिस्टर तिरमिजी के लिए आप मिस्टर ABDEF सबके लिए आप चेक करें कि जनाब क्या ये दयानतदार थे, मोहतात थे, काबिल एतमाद थे, किसी फिरके में थे कि नहीं थे। ये सब चीज़ें देखें। और ये किस बेस पे आप कह रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद इसका उसूल बयान कर दिया। सूरतुल हुजरात में फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यन। ऐ ईमान, अगर आपके पास कोई नाकाबिल एतमाद शख्स कोई खबर लेकर आए तो इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करें।